चलो the video is on. All of you off videos will be out. सुबह के लेक्चर में 6-7 लोग निकल गए थे आज. Better keep it on throughout. Let's continue with retirement. I want you all to take some number. Some number 18. 18th sum, all of you take sum number 18. See, what are the partners' names? What are the names of the partners? Shailesh, Anil, and Das. Can you all see that? Shailesh, Anil, and Das. Okay. After retirement. And what will be the date of balance sheet? Shailesh, Anil, and Das. What will be the date of balance sheet? Sum number 18, page 75. अपना बैलेंस शीट का डेट क्या होने वाला है? Check. 1st April. 1st April 2012. 1st April 2012. Got that? Now, tell me, what is your first step? Opening balances. Opening balances. So start with that. To balance BD. That is cash account दिया है यहाँ पे. Just make it cash. Bank है तो bank, cash है तो cash. Cash account is 6,600. Goodwill नहीं दिख रहा है मेरे को balance sheet में. Come to capital account of partners. How many capital balances you will find in the balance sheet? How many balances of capital accounts? 3 partners. Partners capitals. Shailesh, Anil, and Das. 11, 15, and 8. 11, 15, and 8. बराबर है? After that, you come to your Reserves. second step, that is reserves. You got reserve fund. What is the amount of reserve fund? That's 4,000. Distributed reserve fund. किसमें distribute करना है? Partners. All the 3 partners in old ratio. That is 3:3:2. So divide that 4,000 in 3:3:2 old ratio. कितना होता है 3:3:2 में डिवाइड करोगे 4,000 को? So I think you should get 1,500, 1,500, 1,600, 1,500, 1,500, and 1,000. 1,500, 1,500, and 1,000. Is that right? 1,500, 1,500, 1,000. That's your reserves. Then you come to your capital. Got any capital in the sum? No. No capital. So move to goodwill. Check and tell me. I want you all to check and tell me which case of goodwill is that. Second case. Case 2. 2 or 4? 2. Sure. 4 भी हो सकता है ना? Written off. Share is given Share as is- a only raise. share of goodwill. Share is raised and written off. Absolutely right. Okay. ऐसे दिमाग में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि शेयर ऑफ गुडविल पूछा है कि टोटल गुडविल पूछा है. टोटल गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ इज केस 4, बट शेयर ऑफ गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ इज केस 2. राइट? शेयर ऑफ गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ इज केस 2. सो हाउ मेनी एंट्रीज इन केस 2? 2 entries. 2 एंट्रीज. पहले तो शेयर ऑफ गुडविल रेज किया to the extent of retiring partner और फिर उसको राइट ऑफ कर दिया. So 2 entries. What are the 2 entries? Goodwill to what? All partners. Retiring partner. Goodwill to Retiring retiring partner's capital. And who will write it off? Continuing partner. Continuing partner to goodwill. Goodwill to retiring partner and continuing partner to goodwill. Okay. Now, which goodwill do we need? Total goodwill or share of goodwill in case 2?
Share of goodwill. शेयर ऑफ गुडविल चाहिए अपने को, केस 1 केस 2 शेयर चाहिए, बराबर है। और कौन सा रेशियो चाहिए? शेयर ऑफ गुडविल तो बराबर है, विच रेशियो डू वी नीड? Gain ratio. Gain ratio we need. In case 1 case 2 it's GR. Okay, so question पढ़ो, which goodwill is that 4000? Is that share of goodwill or is that total goodwill? Please check. Which goodwill is that? That is total goodwill. That is total goodwill. That is total goodwill. If you check it properly, it's total फॉर्म goodwill. दिया है goodwill फॉर्म of फॉर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस का गुडविल चाहिए कि अपने को शेयर ऑफ गुडविल चाहिए? Share. कैसे ढूंढोगे? 4000 में से अपने को दास का शेयर चाहिए। व्हाट इज दास का शेयर ऑफ गुडविल? How will you calculate a share of goodwill? Come on, it's very easy. Come on, think. पहले तो कैपिटल रेशियो से we'll find out दोनों का OR क्या था, like old ratio, that is 11:15:8. His share will be 1000. हाँ, his share would be 1000. Your capital, your profit sharing ratio is 3:2. Why are you looking at capital? Your profit sharing ratio. Goodwill is nothing but what? Future का 1 साल का या 2 साल का प्रॉफिट, जो दास को अभी नहीं मिलने वाला 1-2 साल का प्रॉफिट। तो दास बाहर बैठे बैठे रोएगा, वो बोलेगा मेरा प्रॉफिट तुम खा रहे हो, मेरे नाम का पैसा तुम लोग खा रहे हो। हम लोग ने बोला कि रो मत, हम लोग अभी तेरे को 1-2 साल का फ्यूचर का शेयर दे देते हैं, प्रॉफिट्स का शेयर दे देते हैं। दैट इज व्हाट इज शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज व्हाट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। गॉट दैट? तो व्हाट इज दास का शेयर ऑफ प्रॉफिट? ऊपर पढ़ो, व्हाट इज द 3:2. So that is how much? 1000. 1000. 2/8. 2/8, that comes to 1000. टोटल में से शेयर कैसे ढूंढना है, समझा? सिंपली मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितना प्रॉफिट शेयर उतना ही गुडविल शेयर। गुडविल शेयर प्रॉफिट शेयर इज गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज व्हाई? गुडविल आर नथिंग बट फ्यूचर का प्रॉफिट्स। गुडविल आर नथिंग बट फ्यूचर का प्रॉफिट्स। 1-2 साल तक हमें लगता है कि ये बिजनेस 4000 अर्न करेगा। 4000 में दास को कितना मिलने वाला था? 2/8 मिलने वाला था। 2/8 कितना होता है? 1000 होता है। तो वो 1000 अभी के अभी उसको देके रवाना कर देंगे दास को। Who will give this goodwill to whom? Who will give this goodwill to whom? Business to retire. That is Old partner. old existing partner to retiring partner. Shailesh and Anil will give it to Das. Shailesh and Anil will give it to Das. वही एंट्री हम लोग 2 पार्ट्स में करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ केस 2? Goodwill to Goodwill to Das. retiring partner. Goodwill to retiring partner capital, that is goodwill to Das capital. How much? 1000. गुडविल में लिख दो दास कैपिटल 1000। 4000 मत लिखना। Why 4000 मत लिखना? What was 4000? Is of the whole company. Total. टोटल बिजनेस का प्रॉफिट, टोटल गुडविल। अपने को टोटल नहीं चाहिए, दास को क्या देना है? खाली शेयर देना है, शेयर। हाँ, थर्ड और फोर्थ केस होता तो टोटल रेस, टोटल रिटर्न ऑफ नेट इफेक्ट विल गो इन शेयर, बट फर्स्ट और सेकंड केस डायरेक्टली शेयर ऑफ गुडविल। सो गुडविल में टू दास कैपिटल, और दास कैपिटल में क्या आएगा? बाय गुडविल। इज दैट क्लियर? गुडविल में टू दास कैपिटल और दास कैपिटल में बाय गुडविल 1000. गॉट दैट? नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट? इमीडिएटली राइट ऑफ भी किया है। व्हाट इज द राइट ऑफ की एंट्री? Existing to goodwill. Existing partner to goodwill. Who are the existing partner? Shailesh and Anil. So Shailesh Anil में to goodwill, and goodwill में आएगा by Shailesh Anil. Which ratio? Gain. Gain ratio. What is the logic of gain ratio? जो रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर को फायदा हुआ रिटायरिंग पार्टनर के जाने से, वही रेशियो में ये लोग गुडविल का हिस्सा दे देंगे रिटायरिंग पार्टनर को। जो रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर का फायदा हो रहा है, वही रेशियो में ये लोग गुडविल को दे देंगे, गुडविल का पैसा दे देंगे रिटायरिंग पार्टनर को। तो गेन रेशियो क्या है? इज देयर एनी नीड टू मेक एनी नोट और कैलकुलेट एनी स्टफ about gain ratio? Is there any need to do that? No. What you can do is simply remove the retiring partner. Who is the retiring partner? Das. So I think my old ratio was 3:3:2. If I remove this 2, what's my GR and what's my NR?
One 1:1. What is 3:3? 1:1. 3:3 is 1:1. So equally 500, 500. Is that clear? 3:3 is 1:1. So 500, 500. शैलेश और अनिल में लिखा 2 गुडविल और गुडविल में क्या लिखना है? बाय शैलेश कैप बाय अनिल कैप. ये हो गया राइट ऑफ 500, 500. तो अभी ध्यान से देखोगे ना कैपिटल अकाउंट को आपको क्लियरली पता चल जाएगा किसका कैपिटल कम हुआ और किसका कैपिटल बढ़ा ड्यू टू दिस गुडविल एंट्री. Which partner's capital decreased and which partner's capital increased? Continuing partners decreased and Das increased. Continuing partner's capital decreased and retiring partner capital increased. So business क्या दिखेगा अभी? Business will pay Shailesh and Anil 500, 500 less, and business will pay Das 1000 more. Shailesh और अनिल का कैपिटल कम, दास का कैपिटल बढ़ गया. शैलेश और अनिल ने गुडविल का पैसा दास को दे दिया 1000 अभी के अभी दे दिया. जो 1-2 साल के बाद प्रॉफिट्स होने वाले हैं उसमें जो दास को मिलने वाला था वो अभी का भी दे दिया. क्यों दे दिया? क्योंकि ये नाम का पैसा है, नाम का प्रॉफिट है. दास भी था नाम बनाने में, इसलिए गुडविल का पैसा उसको मिला. It will be 1,500. 1000. Why 1500? Just 3,000, no? 4,000 minus 1,000. No. 4000 को तो भूल ही जाओ अभी. 4000 was total goodwill. 4000 is none of your concern. 4000 में से उसका शेयर देना था ना उसको. शेयर कितना था? 1000. वो 1000 शैलेश और अनिल ने दास को दिया. तो शैलेश अनिल का कैपिटल घटा और दास का कैपिटल बढ़ा इन द गेन रेशियो 1000. Got it? Forget about that 4000. 4000 is of no use for us now. As it was case 2. If it was case 4, then would have taken 4000. तो टोटल रेस करते 4, टोटल राइट ऑफ करते 4 और फिर ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट यही आता. दास को 1000 मिलता और शैलेश अनिल में से 500 रुपए निकल जाता. गुडविल क्लियर हुआ? सेकंड केस क्लियर है सबको? सेकंड केस में विच गुडविल डू वी नीड? कम ऑन टेल मी, विच गुडविल डू वी नीड? टोटल और शेयर? शेयर. लेकिन अपने को प्रॉब्लम में क्या दिया था? Total. टोटल से शेयर कैसे ढूंढा? समझ में आया? Old ratio से ना? सीधा ओल्ड रेशियो शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया. शेयर ऑफ प्रॉफिट था ओल्ड रेशियो में कितना था? दास का शेयर 2/8. तो 2/8 से मल्टीप्लाई किया, शेयर मिल गया 1000 रुपया. गॉट इट? ऐसा कभी कभी केस 3 केस 4 में शेयर दे देंगे और बोलेंगे कि टोटल ढूंढो. कैसे ढूंढोगे? उल्टा, रेसिप्रोकल. बराबर है? हमने किया भी था, याद है एडमिशन में. शेयर दिया, वहां से टोटल ढूंढना है तो रेसिप्रोकल, टोटल से शेयर ढूंढना है तो रेशियो से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, रीवैल्यूएशन. तो ये और एक बार एक्सप्लेन करो ना ये रेसिप्रोकल वाला. रेसिप्रोकल वाला मतलब क्या कि सपोज यही सम में आपको 1000 रुपीज दिया है, दास का शेयर दिया है और बोला है कि केस 4 है, टोटल गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. तो दास का शेयर इज 1000. तो व्हाट इज द टोटल गुडविल? शेयर ऑफ गुडविल दिया है 1000 और टोटल गुडविल ढूंढने को बोला है. तो कैसे ढूंढोगे? दास का शेयर ऑफ गुडविल इज 1000. 1000 इज फॉर 2/8. 2/8. तो टोटल का कितना? इंटू 8/2 करोगे तो आ जाएगा ना उल्टा. 1000 इज फॉर 2/8. टोटल मतलब 1 का कितना? 1000 इंटू 1 अपॉन 2/8 इंटू 8/2. सो टोटल में से शेयर चाहिए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करो, शेयर से टोटल चाहिए तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लो. याद रखना केस 1 केस 2 में शेयर चाहिए, केस 3 केस 4 में टोटल चाहिए. ओके, नाउ let's come to the next step, revaluation. First point was about goodwill, we did that. Assets are to be revalued as follows. स्टॉक की रिवाइज्ड वैल्यू है 6300. ऊपर देखो स्टॉक कितना था, तो 6600 था, उसको 300 रुपए से कम करना है, ये हो गया 6300. इज दैट राइट? देन सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? ये स्टॉक कम हो गया तो गेन हुआ कि लॉस? It's a loss, right? 300 rupees will go to reval debit. मशीनरी 10,000, ऊपर कितना था? मशीनरी 10,700. तो मशीनरी
10,700 का बन गया 10,000 लेस रिवैल्यूड 700, ये हो गया 10,000 एंड मशीन का रिवैल डेबिट साइड सर हम रिवैल लिख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन लिखना रिवैल्यू, यहाँ पे रिवैल्यूड लिखना है, रिवैल्यू, यहाँ पे रिवैल्यूड, और अकाउंट के टाइम यूज करते वक्त इट इज रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन, फर्नीचर 10,200 बन गया है, ऊपर कितना था फर्नीचर 10,000 था, तो बढ़ गया है फर्नीचर 10,000 का हो गया है प्लस रिवैल्यूड बाय 200, सो इट इज 10,200, और ये आपका गेन हो गया है, तो बाय फर्नीचर 200। गॉट दैट? गेन लॉस का पार्ट क्लियर है? दो एसेट, एक एसेट बढ़ गया। RDD to be maintained at 10% on debtor. Was there any existing RDD? Check. No existing RDD. So कितना बनाना है आपको RDD? Less RDD. You need to make directly 10%. Create 10% on debtors. So that's 5,000 पे 500. Net amount comes to 4,500. RDD as a liability था. Liability बढ़ गया. Liability बढ़ गया तो it's a loss. To RDD 500. घट जाता तो गेन, बढ़ गया तो लॉस, तो रिवाइल डेबिट साइड टू RDD 500 rupees. Got that? 100 to be written off from creditors, मतलब क्या 100 to be written off from creditors, is that a gain or a loss? Gain. 9,000 के क्रेडिटर थे, अभी 100 रुपया देना नहीं है, ओके, तो लेस रिवैल्यूड 100 रुपया कम कर दो, दैट्स लाइक डिस्काउंट, डिस्काउंट मिल गया तो दैट्स योर गेन, लायबिलिटी घटा तो दैट्स योर गेन बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स। रिवाल समझा सबको? If you play with reval, same thing we did in reval. That's it. I think your sum is over. No proportionate capital adjustment. What is the total? Profit हो रहा है कि loss? So I think it's a loss of 1,200 rupees. Is that right? 1,200 का loss है. शैलेश, अनिल, किसको जाएगा ये loss? Only 2 partners or all the 3 partners? All three. All the 3 partners. All the 3 partners, Shailesh, Anil, and Das Capital. Loss will go to all the 3 partners, right? What's your loss? Check. 450, 450, 300. 450, 450, 300. Buy capital का corresponding entry to revaluation account. That's 450, 450, 300. And then you close down your capital account. Close down your capital account. Okay. First account you will be closing is whose account? सबसे पहला किसको बंद करना है? Das. Check in the problem. There are 2 ways of settling a retiring partner. Do you remember the 2 ways, 2 methods? We discussed them in the last lecture. What are the names of 2 methods? By cash or Cash by and current loan. account. Either by cash or by showing loan. it as a loan. जो कैश वाला होता है उसका नाम क्या? कैश वाले मेथड का नाम लमसम मेथड, और जो लोन वाला होता है Fixed इंस्टॉलमेंट मेथड. ओके, इंस्टॉलमेंट मेथड. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ो कैसे दे रहे हो आप पैसे दास को. रीड द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, चेक, दे विल बी प्रोवाइडिंग इट टू यू इन द क्वेश्चन. आर वी पेइंग हिम कैश इमीडिएटली और आर वी कीपिंग हिम पेंडिंग, कीपिंग इट पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन? पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? लास्ट लाइन पढ़ो सब लोग, क्या दिया हुआ है? दास को जो पैसा देना था, अमाउंट पेबल टू दास इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. तो दास का क्रेडिट माइनस डेबिट करो, ये उसको देना था 8 + 2 10,000 ऑन क्रेडिट माइनस 300 डेबिट, लॉस वो कम कर दिया 9,700 क्रेडिट माइनस डेबिट. What should I write over here? To balance, to cash, to loan? What should I To write? loan account. टू लोन. To loan. कहाँ जाएगा ये लोन? Where should I write Liability. loan? In the liability. ये पैसा देना बाकी है, बराबर है.
टू कैश होता तो पे ऑफ कर देते, टू लोन है तो पेंडिंग रखा है, टू बैलेंस तो कभी नहीं आएगा रिटायरिंग पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर जा चुका है बिजनेस में से। अभी आप बंद करो बाकी दो अकाउंट्स, तो दैट कम्स टू हाउ मच, 12,500, 12,500, 16,500, 16,500। बाकी दो का क्या है, वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना बिजनेस, उनके लिए क्या लिखना है, टू कैश, टू लोन, टू बैलेंस, क्या लिखना है उनके लिए? टू बैलेंस। उनके लिए तो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी लिखना है। करो 12,500 माइनस 950, 11,550 and 15,550. 15,550, 11,550 एंड 15,550, दैट्स इट, हो गया आपका सम। ये पार्टनर कैपिटल लेके आओ। कितने पार्टनर का कैपिटल दिखेगा आपको? दो ही पार्टनर का कैपिटल दिखेगा अभी, शैलेश कैप और अनिल कैप। 11,550 और 15,550, और टोटल कितना आता है ये? 27,100 आ रहा है, 27,100, इज दैट राइट? 27,100 करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट लोन? यहाँ पे दास लोन आ जाएगा आपका, दास लोन। व्हाट इज दास लोन? 9,700, दैट इज योर दास लोन। एंड बाकी सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्वेश्चन से कॉपी करके लिखना है। सबसे पहला बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं लिखा है तो लिख दो बिल्डिंग। बिल्डिंग था आपका 10,000, नो चेंज। फिर मशीनरी लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, डेटर्स लिख दिया, स्टॉक लिख दिया। कैश, व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ कैश? बाय बैलेंस सीडी माइनस क्रेडिट, कितना आ रहा है बैलेंस? 6,600 रुपीज, इट्स योर कैश। 6,600 का बैलेंस आ गया कैश। कैपिटल्स ऑलरेडी रिटर्न। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल लिख दो यहाँ पे, बिल्स पेएबल नहीं लिखा है, दैट इज 1,900। क्रेडिटर्स लिख दिया। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इट शुड टैली। टैलीज ऑन व्हाट? 47,600. 47,600, is that right? Both the sides. 47,600, please check. 47,600. Drop a journal. Once you have finished this, drop a journal. The journal for this sum. Told you to leave two sides. Well, any doubt in this? सबसे important था goodwill का case. Were you all able to identify it as case 2? What is the difference between case 1, 2 and 3, 4? 1, 2 में share of goodwill है, 3, 4 में total goodwill है, 1, 2 में GR है, 3, 4 में OR और NR। बाकी नेट इफेक्ट सबका सेम है, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल कम और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। ड्रॉप अ जर्नल क्विक। जर्नल ड्रॉ करो सब लोग। सर आज कितने सम करना है? 3 सम्स और 2 जर्नल्स। Come on. First entry, you tell me, what will be the first entry? Is there any entry for opening balance? First one is for reserve. Tell me. What is the General entry? reserve to A cap, to Silas cap, to Anil cap, to Das cap. Reserve fund account debit to Shailesh cap, Anil cap, Das cap. Reserve fund account debit to Shailesh, Anil, Das. What is the difference between general reserve and reserve fund?
हम लोग तो सेम ही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रैक्टिकली थोड़ा सा फर्क है, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड, किसी को पता है? जनरल रिजर्व फंड, व्हाट इज द डिफरेंस? जनरल रिजर्व का जो पैसा होता है ना, वो कैश फॉर्म में होता है, एसेट साइड पे, लिक्विड कैश। जब जी चाहे बैंक में से निकालो, कैश फॉर्म में होता है, पे कर दो किसी को। रिजर्व फंड का जो पैसा होता है ना, वो इन्वेस्टेड होता है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ होता है उसमें। ये सब में आपको इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है, थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली रिजर्व फंड का जो पैसा होता है वो कहीं इन्वेस्टेड होता है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज। और का पैसा कैश फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म। Sir, can you repeat the first entry? Reserve fund account debit to Shailesh Cap, Anil Cap, Das Cap. Reserve fund account debit to Shailesh, Anil, Das. Yes, Priyansh? So sir, if it is invested, then it is subjected to depreciation, appreciation also, right? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं ना, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। स्टेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होता है, But जिसकी वैल्यू हार्डली फ्लक्चुएट होती है मार्केट। नहीं होता। Okay. मेनली दे आर फॉर द पर उसका रेट ऑफ रिटर्न भी खराब रहता है। रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम रहता है, 4-5%, 6%, बहुत कम रहता है। उसका मेन पर्पज रहता है कि स्टेबिलिटी, आपका खाली इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बीट हो जाए, स्टेबिलिटी रहे आपके कैश की। सर इन्फ्लेशन 6.4% है और इसका इंटरेस्ट ही 3% है, तो कैसे? हाँ, तो कितना सारा एसेट्स इन्फ्लेशन को बीट करता ही नहीं है। खाली 2-3 एसेट ऐसा है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, ये इसका ही रिटर्न इन्फ्लेशन 6.4 भी नहीं है भाई, वो तो बोलता है आरबीआई 8% के ऊपर है इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन इज 8% से ज्यादा। तो 8% का रिटर्न बीट करना इन अ लॉन्ग रन, इट इज डन ओनली बाय गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स, और कोई एसेट कर ही नहीं पाया उसको बीट। नॉट इवन रियल एस्टेट, लैंड नॉट इवन रियल एस्टेट, दैट्स व्हाट आई सेड। लैंड का आप देखोगे ना 40-50 इयर्स का हिस्ट्री, इट इज हार्डली अराउंड 8-8.5%। 40-50 इयर्स का हिस्ट्री, वो भी सिलेक्टेड प्लेसेस में, जहाँ पे जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, बैंगलोर है, कैलकाटा में भी इतना नहीं है। जो मेट्रोज है थोड़े बहुत, वहां पे पुणे है, वहां पे थोड़ा बहुत प्राइसेस बढ़ा है बहुत। बाकी तो तुम चेन्नई वेन्नई में जाओ, नागपुर में जाओ, सेकेंड 2 टायर 3 टायर सिटीज में जाओ, आपका कॉस्ट क्या है? पर स्क्वायर फुट कॉस्ट इज 6 to 8,000 पर स्क्वायर फीट आपको घर मिलता है। बॉम्बे में क्या है, 15,000 के नीचे जगह नहीं मिलता आपको। बाकी टायर 2 टायर 3 सब, कानपुर, लखनऊ, पटना, कोई भी साइट का डेटा उठा के देख लो, 6 to 8,000 इज 4,000 भी मिलता है, 4,000 रुपीज स्क्वायर फीट, 5,000 रुपीज स्क्वायर फीट, 7,000 रुपीज स्क्वायर फीट, 8,000 रुपीज स्क्वायर फीट, दैट इज द एवरेज प्राइस। अच्छे से अच्छा एरिया इन दैट लोकेलिटी, you get the houses at these rates. So real estate is just a bubble boom, temporary. वो क्या है, बगड़े का पैसा जगाने का एक जरिया था। पब्लिक के पास 2 नंबर का कैश रहता था तो डाल देता था रियल एस्टेट में, गोल्ड में। बट अभी वो सब डिमोनेटाइजेशन आया, रेरा आया, जीएसटी आया, अभी सब वाइट होने लगा, तो वो भी कम हो गया है। अभी वो बबल ही बस्ट हो गया है, रियल एस्टेट एज वेल एज गोल्ड। Only way to beat inflation is work. You work, you can beat inflation, you can earn. So if you are working, you can beat inflation by earning your own self. Otherwise, you can invest in someone else's business. That is what is stocks. That is what is shares. Shares and stocks are businesses. If you invest in someone else's business, the returns will be beating the inflation. That's it. So first entry was reserve fund to Shailesh, Anand and Das. What is the second entry? नरेश आंसर इसका क्या होगा? Reserve fund distributed to old partners. Being reserve fund distributed to old partners. Being reserve fund distributed to old partners. Tell me the second entry. Come on. गुडविल टू दास कैपिटल। Very good. यहाँ पे कैपिटल नहीं है ना, तो goodwill to Das Capital. Goodwill to Das Capital. Goodwill to Das Capital, that's 1,000. Goodwill to Das Capital, that's 1,000. Being Das share of goodwill raised. Being Das share of goodwill raised. Being Das share of goodwill raised. Being Das share of goodwill raised.
ठीक है. Sir, can you repeat the secondary? I got disconnected. Goodwill to Das Capital 1000 being Das share of goodwill raised. Goodwill to Das Capital 1000 being Das share of goodwill raised. Then what is your third entry? Raise करने के बाद क्या किया आपने? Shailesh capital, Anil capital to goodwill account. Very good. Shailesh Anil to goodwill, third entry. ये रहा. Write off किया. तो जो second वापस बोलो ना. goodwill to Das Capital, it's there in front of you. नंबर भी किया हुआ है. Goodwill to Das Capital 1000. Das share of goodwill raised. Then Shailesh Anil to goodwill. Shailesh Anil to goodwill. Shailesh cap, Anil cap to goodwill. That is 500, 500, 1000. Shailesh cap, Anil cap to goodwill. 500, 500, 1000. Being goodwill written off. Being goodwill written off. Being goodwill written off. आगे लिख सकते हो being goodwill written off by old partners in gain ratio. Otherwise simple short narration is also fine. Narration में load मत लेना ज़्यादा. Narration खाली दिखना चाहिए. Own words में you can write. Okay. Being goodwill written off. Being goodwill written off. Goodwill के बाद क्या था हमारा next step? Reval. Reval. Can you tell me the fourth entry? ध्यान से देखो क्या लिखोगे fourth entry? What should be your fourth entry? Revaluation to stock to machinery to RDD. Reval to stock to machine to RDD. Reval to stock to machine to RDD. Absolutely right. Reval to stock to machine to RDD. Reval to stock to machine to RDD. क्या लिखोगे नरेशन? Being stock machinery RDD revalue. Being stock machinery RDD revalued. Very good. Being stock machinery RDD revalued. Being stock machinery RDD revalued. What is your entry number 5? Buy furniture creditor to reval. Furniture creditor to reval 200, 100, 300. Furniture creditor to reval 200, 100, 300. क्या लिखोगे नरेशन में? Being furniture and creditors revalued. Being furniture and creditors revalued. सर क्या आएगा? क्या क्या? एंट्री क्या आएगा? Furniture creditor to reval. Furniture creditor to reval. Being furniture and creditor revalued. That is your fifth entry. What's your sixth entry? Shailesh cap, Anil cap, Das cap to revaluation. Perfect. Shailesh Anil Das to revaluation. Profit loss ढूंढा था हमने. Shailesh cap, Anil cap, Das cap to revaluation. 450, 450, 300 and 1200. Shailesh cap, Anil cap, Das cap to revaluation. 450, 450, 300. Total is 1200. Okay. क्या लिखोगे नरेशन? Being किसकी एंट्री थी? Loss on reval transfer to old partners. Loss on reval transfer to old partners. Being loss on reval transfer to old partners. Being loss on reval transfer to old partners. Being loss on reval transfer to old partners. And there's one more entry in the sum. The last entry, what is that? Das capital to Das's loan account. Very good. The last entry, it will come in all retirement problems, all problems. Either Das to Das loan या Das to bank. यहाँ पे Das capital to Das loan. Das capital to Das loan 9,700. Das capital to Das loan 9,700 being Das capital transferred to Das loan. Being Das capital, balance in Das capital या Das capital transferred to Das loan. Being Das capital transferred to Das loan. Das capital transferred to Das loan.
अभी आप सभी को सम नंबर 20 खुद से करना है. 20 मिनट्स बोर्ड लेवल का सम है, बोर्ड के साइज का सम है, सिमिलर टू द सम वी डिड जस्ट नाउ. 20 मिनट्स स्टार्ट टू एंड 3 बजे तक शार्प ट्राई करो उड़ाने का. 3 o'clock. कौन सा सम सर? 20 साठे, देशपांडे एंड मडलानी. सम नंबर 20. So, do we have to solve journal of this one? नो नो नो. 20th में देयर इज नो जर्नल. उसके बाद वाले सम में जर्नल. ट्राई टू गेट दिस सम in 15 to 20 minutes. Come on, all of you. पिछले सम में किसी को डाउट? 7th entry dash capital to dash loan है. Entry dash capital to dash loan 9,700. Being dash capital transferred to dash loan. Being dash capital transferred to dash loan. Sorry, being dash capital transferred to dash loan. Come on. Sum number 20, do it on your own. सर बोलो. सर कैश स्लैश बैंक है तो कौन सा अकाउंट? सब में कैश स्लैश बैंक. अकाउंट भी कैश स्लैश बैंक और एंट्रीज में भी सब जगह कैश स्लैश बैंक की यूज. ओके सर. कैश स्लैश बैंक दिया तो सब जगह यूज कैश स्लैश बैंक. Sir, 20th sum, right? कौन सा कर रहा है भाई? 20th सम में किधर है कैश? Is solving 19. ये भाई कैश बनाने का कैश. स्टार्टिंग में ही गलत ट्रैक पे चढ़ गया. बच गया, कोई एंट्री स्टार्ट नहीं की थी. इधर तीसरा पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा, बीच वाला रिटायर हो रहा है. देश पांडे सेकंड पार्टनर इज रिटायरिंग. लोचा मत कर देना रेशियो में.
The case 3 of goodwill, no? Check. I don't know. Check properly. Share has to be raised. That is which case? To Sorry. Which case of goodwill, guys? second case, share is Case to be two. raised. केस 2 है, बट टोटल गुडविल दिया आपने को। कौन सा गुडविल चाहिए केस 2 के लिए? Share ढूंढना. कैसे ढूंढोगे टोटल में से शेयर? Ratio sir. लास्ट समय किया था ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से शेयर से मल्टीप्लाई कर। किसी को मिला गुडविल का शेयर का अमाउंट? 8,000. 8,000. 8,000 रुपया, दैट इज द शेयर ऑफ गुडविल, 8,000 रुपीज। ओके, कैसे मिला समझा आपको? 5:2:3 है ना, देश पांडे का 2/10, सो 40,000 का 2/10, दैट्स 8,000। 40,000 लेके एंट्री मत पास कर देना। फेविन दोषी टोटल गुडविल दिया है, शेयर ढूंढना है। ओके, लास्ट समय किया था ना 4,000 का 2/8, वैसे 40,000 का 2/10, शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 8,000। So बोलो। workers' compensation is also comes in reval, right? हाँ रिवैल, वो ये है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। कोई वर्कर इंजर्ड हो गया है, हम लोग ने किया था ना आउटस्टैंडिंग डैमेज, वही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। कोई तो वर्कर इंजर्ड हो गया है और अपने को पैसा देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी बढ़ गया, ऊपर तो था नहीं ना, तो जीरो से कितना हो गया वो लायबिलिटी 8,000, तो लायबिलिटी बढ़ गया तो लॉस, रिवाइल डेबिट और लायबिलिटी नया बैलेंस शीट में लायबिलिटी। और सर वो आरडीडी का आएगा क्या, मतलब गेन है ना वो? गेन है, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। इसका मतलब क्या है अभी? आरडीडी गेन हो गया, आरडीडी बढ़ा कि घटा? कम हो। आरडीडी कम मतलब गेन 2,000 था, अभी जीरो हो गया। इन योर न्यू बैलेंस शीट विल यू हैव एनी आरडीडी? नो, ओनली डेट, ओनली डेटर्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेटर्स इन द न्यू बैलेंस शीट? 36,000। आरडीडी गायब हो जाएगा, आरडीडी रिवाइल क्रेडिट और गायब हो जाएगा। लायबिलिटी कम हो गया तो दैट्स योर गेन।
प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन मतलब आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है वर्कर को, वो इंजर्ड हो गया है तो पैसा देना बाकी है। इट्स लाइक अ न्यू लायबिलिटी। मैं गया था ना, क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम टू वुमेन वर्कर, कुछ भी, क्लेम फॉर एक्सीडेंट, ऐसा कुछ भी डैमेज हो गया तो एक नया लायबिलिटी इनकर हुआ है, पैसा देना बाकी है। ऊपर 0 था, अभी बढ़ गया, सीधा 8,000 हो गया, तो दैट्स योर लॉस, रिवाइल डेबिट साइड। सर प्रॉफिट हो रहा है ना, हाँ बोलो। गुडविल देश पांडे में जाएगा। हाँ, मदला नहीं। और इधर देश पांडे, बराबर। आ रहा है प्रॉफिट लॉस। $8,000 का प्रॉफिट आ रहा है क्या? हाँ सर। टैली हो गया वरुण का? हाँ सर। वेरी गुड। ना आ रहा है ये ब्रेकअप। 523 मतलब 4,000, 1,600 एंड 2,400 जाएगा इधर बाय रिवैल। 4,000, 1,600 एंड 2,400। और सबसे पहले बंद करना है देश पांडे। हाउ आर वी पेइंग देश पांडे? थ्रू लोन और थ्रू कैश? चेक इन द प्रॉब्लम, दे मस्ट हैव गिवन समथिंग। कैसे सेटल कर रहे हो देश पांडे को? सर लोन। लोन। लोन, तो टू देश पांडे's लोन। क्रेडिट माइनस डेबिट 85, 93, 94, 600 आ रहा है वरुण। हाँ सर। एंड बाकी दो का बैलेंस, दिस इज 74, 76, 86, 500। 86, 500 minus 5,000 is 81, 500 to balance CD, और 57, 59, 900 minus 3, 56, 900। ये जाएगा तुम्हारा बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साठे कैपिटल एंड मतलानी कैपिटल। 81, 500 and 56, 900. What is the total? $1,38,400. 138,400. And this Pandey's loan is 94,600. The balance is by balance CD. Cash का है 28. Will you have any goodwill in the balance sheet? Goodwill आएगा balance sheet में? बोल. No. Written off. Only case 1 and case 3 it will appear in retirement. बाकी कोई केस में goodwill नहीं आने वाला है। बाकी एसेट लायबिलिटी छापना है। प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मोटर वैन भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, कैश भी हो गया, कैपिटल हो गया। क्रेडिटर्स नहीं दिखा है। क्रेडिटर्स
25,000 as it is. Bills payable भी नहीं लिखा है, so bills payable are 12,000. So tally 2,78,000. 2,78,000. No journal in this sum. 2,78,000. Check it. Don't copy. Do it on your own. Should have done it in this time. The time में होना चाहिए था. Check. हो गया? All of you? सर एक मिनट. Hello. Well, any doubt in the sum? Getting it now? Retirement. आ रहा है grip? Last sum number. We are doing sum number 19. 1919. With journal करना है 19 sum. Done with this? इसमें भी आपका जो टोटल गुडविल था वो दिया हुआ था. टोटल गुडविल था आपका 40,000. अपने को 40,000 से कोई लेना देना नहीं है. अपने को देश पांडे का शेयर चाहिए. ये केस 2 था. 40,000 का 2/10. That came to 8,000. देश पांडे शेयर ऑफ गुडविल वाज 8,000. एंट्री 8,000 के हिसाब से करनी है और गेन रेशियो में करनी है. गेन रेशियो कैसे ढूंढना है सबको? गेन रेशियो बीच वाले पार्टनर को उड़ा दिया. You got 5:3 as your new ratio, 5:3 as your gain ratio. Sorted? All right. Last sum number 19 पे आ जाओ सब लोग. Sum number 19. Who are the partners? And is it cash or bank? And what is the date of balance sheet? Just write those stuff. Sum number 19. The partners are Shedge, Maekar and Raut. Shedge, Maekar and Raut. Shedge, Maekar and Raut. Okay. And what you will write after retirement? Which sum, sir? 19th sum. Doing sum number 19. This is 1/4/12. Date of balance sheet is 1/4/12. And you got cash or bank in the sum. It is cash/bank. अभी आया ये 7 वाला cash/bank आया. तो सब जगह cash/bank लिखना आपको. अकाउंट के नाम में भी cash/bank और सब जगह cash/bank. इसके अलावा आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिख रहा है लायबिलिटी साइड पे. कैन यू सी दैट? आपको मिला बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन द लायबिलिटी साइड. भी याद रखना गाइस, फॉर 12th स्टैंडर्ड व्हेनेवर यू कम अक्रॉस बैंक ओवरड्राफ्ट, नेवर मेक एन अकाउंट. बैंक ओडी का अकाउंट नहीं बनाना है आपको. बैंक ओडी को सेपरेट लायबिलिटी ट्रीट करने का. क्या अज्यूम करना है?
हमारे पास दो बैंक अकाउंट्स है, वी आर हैविंग टू बैंक अकाउंट्स, वन इज हैविंग अ नॉर्मल बैलेंस, वन इज हैविंग एन ओवरड्राफ्ट. सो बैंक ओवरड्राफ्ट का कभी अकाउंट बनाने का नहीं. नॉर्मल लायबिलिटी लाइक योर क्रेडिटर्स, लाइक योर बिल्स पेएबल, जस्ट पुट इट इन द लायबिलिटी एज इट इज. जैसा ऊपर था वैसा नीचे, कैरी फॉरवर्ड. गॉट इट? नॉट ओनली फॉर रिटायरमेंट, फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, आगे कोई भी चैप्टर, बैंक ओवरड्राफ्ट का कभी भी अकाउंट ओपन नहीं करना है. इज दैट क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जस्ट लाइक योर क्रेडिटर्स और बिल्स पे. Just show it as. What is the assumption for 12th standard? Assumption is we are maintaining two bank accounts. One is having normal balance, one is having overdraft. Normal balance वाला उसका अकाउंट ओपन करो, एंट्रीज करो, ओवरड्राफ्ट वाला सीधा का सीधा लायबिलिटी. ओके, तो बैंक कोड ही देख के टेंशन में मत आ जाना कि अकाउंट में क्या लिखना है. अकाउंट में लिखना ही नहीं है कुछ, सीधा लायबिलिटी टू लायबिलिटी एज इट इज. चलो करते हैं शुरुआत. बोलो मुझे फर्स्ट स्टेप, बोलो बोलो फटाफट. Opening balance. बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, राइट. ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक का कितना है तो 2000. पार्टनर कैपिटल का कितना आ रहा है बाय बैलेंस बीडी, दैट्स 15 10 10 15,000 10,000 10,000. First step, that's your opening balance. Some of you are still drawing the columns. I told you to draw for 4 sums and come. फोकट का sums miss out होएगा तुम्हारा. See to it next lecture you have 4 sums का columns ready. Buy balance BD 15 10 10. Okay. Second step. Tell me the second reserves or losses. Do you find any reserve? General reserve, reserve fund दिख रहा है आपको कुछ? Profit and loss account. Profit and loss account दिख रहा है, but on the asset side, what does that indicate? What is it? Losses. Losses, accumulated loss. So which side of capital should you distribute it to? Debit side. To P&L account. Okay, on the debit side. In which ratio? Old ratio, that's 4:3:3. Karo divide 5,800 in the ratio of 4:3:3. How much do you get? 232017401740. सब लोगों की दुआएं लगेगी तुमको. ओके, इतना डिफिकल्ट आंसर फटाफट बोल दिया. बाकी लोगों को कैलकुलेशन करना ही नहीं है. बोलेंगे थैंक यू वरुण. ओके, वरुण है ना करने के लिए. 232017401740. ठीक है, एग्जाम में कोई वरुण नहीं मिलने वाला है, खुद से करना है. और यहाँ की टेस्ट में छापोगे तो छापोगे, बोर्ड में तो पक्का कोई नहीं मिलेगा. और इधर पाप करोगे तो बोर्ड में डबल लोग ही मिलेगा आगे पीछे, देखना. कॉपी करोगे वो भी रॉन्ग जाएगा. So better don't copy and do it on your own. Calculation, do it on your own. So 232017401740. Okay, that's your P&L. Accumulated loss transfer. Tell me third step. Usually capital होता है, but यहाँ पे कोई capital आ रहा है? No one. So go to your fourth step. What's your fourth step? Come on, what's your fourth step? Goodwill. Check and tell me which case of goodwill. All of you check and tell me. Case 2. Case 2. Case 2. 1. 3. 2. Case 2. Case 2, 1, 3, 4. Which case? Come on, all of you check. नीचे रिटर्न ऑफ दिया लास्ट. नीचे रिटर्न ऑफ दिया है. जीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार. ओके, शार्प होना चाहिए, शार्प. खाली पहला लाइन पढ़ा, शेयर ऑफ गुडविल रेज्ड, और कर दिया केस 1. फिर एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, फ्रेंड्स ने बोला केस 2 था. और किधर था? अरे नीचे था, लास्ट लाइन पे था. तो पढ़ने का, पूरा सम पढ़ने का, नहीं तो एग्जाम सेंटर के बाहर सर पर हाथ रख के बैठोगे. ओके, 2 मार्क 3 मार्क गुल, 3000 स्टूडेंट गुल, बैंड बच जाएगी. तो डोंट बी केयरलेस. रीड प्रॉपरली द एंटायर सम. किधर भी दे सकते हैं. सबको मिला? केस 2 है. ऑल ऑफ यू एग्री? केस 2. केस 2 के लिए विच गुडविल डू वी नीड? Share of goodwill. पढ़ो क्वेश्चन में. शेयर दिया है कि टोटल दिया है? क्या हमें शेयर ढूंढना है कि शेयर दे दिया है? बोलो. दिया है शेयर. दिया है, प्लेट में सर्व करके दे दिया है शेयर. तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. लास्ट सम में क्यों किया? लास्ट सम, लास्ट टू लास्ट सम में अलग से शेयर वहाँ पे मल्टीप्लाई टोटल दिया था. वहां पे टोटल गुडविल दिया था, इसलिए शेयर ढूंढा.
बात समझ आई निराग गांधी को? टोटल गुडविल दिया था, इसके लिए शेयर ढूंढा, यहाँ पे तो शेयर दिया हुआ है, अपने को शेयर ही चाहिए, शेयर रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो डायरेक्ट एंट्री मारो। क्या होगी एंट्री? नाउ यू शुड नो व्हाट आर द टू एंट्रीज ऑफ गुडविल। गुडविल टू व्हाट? Retiring partner capital. Who is retiring? राउत। तो गुडविल टू राउत कैपिटल 3500 और राउत कैपिटल में बाय गुडविल, राउत कैपिटल में बाय गुडविल 3500। What about return of? Who will write off this goodwill? Who will write off this goodwill? Shegde and Mayakar. Shedge and Mayakar, okay? Shedge and Mayakar to goodwill. Shedge and Mayakar में आ जाएगा to goodwill, perfect. Which ratio? $1 million question. Which ratio? gain ratio. Gain ratio होना चाहिए. Case 1, case 2 it is GS. याद है? Admission में case 1, case 2 SS. Retirement में case 1, case 2 GS. Gain ratio. बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ. What is your gain ratio? 4:3. कैसा मिला 4:3? Is there any need to do any calculations? प्रसिद्धि, खिड़की के बाहर नहीं है रेशियो. Is there any need to do any calculation? No. How will you calculate the ratios in your Harshita? How do you calculate the ratios? Just remove the retiring partner. Who was the retiring partner? Raut. Just remove Raut. What are you left with? 4:3. 4:3 is sacrifice. 4:3 is gain. 4:3 is new ratio. करो डिवाइड 4:3 में कितना आता है? 3500 को करो डिवाइड 3,000. 2000 and 1500. What is the corresponding entry to goodwill का corresponding entry? By Shedge capital and by Mayakar capital. Shedge capital, Mayakar capital, that's 2000 and 1500. Is that clear? 2000 and 1500. Sorted? बरोबर है? खत्म. गुडविल रेस किया, राइट ऑफ हो गया. गेन रेशियो में शेडगे मयकर का कैपिटल घटा, राउत का कैपिटल बढ़ गया. शेडगे मयकर का कैपिटल घटा, राउत का कैपिटल बढ़ गया. राउत को गुडविल का शेयर मिल गया. अब जाओ रिवैल्यूएशन पे. रीड अबाउट रिवैल्यूएशन. व्हाट आर द गिवन चेक? हिज शेयर ऑफ गुडविल हो गया. फर्नीचर एट 4000. व्हाट वाज द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर? फर्नीचर का एग्जिस्टिंग वैल्यू था 4200. उधर से बनाना है 4000, तो बढ़ाना है कि घटाना है? तो घटाना है. Is that a gain or a loss? Is that a gain or a loss? बोलो. That's your loss, right? That's your loss, 200 rupees. Then you got stock. Stock, what was the stock value? Stock value was 13,000. You need to make it 16,000. So add revalued 3000 से stock बढ़ा दो, you get 16. Stock बढ़ गया, so that's your gain. Buy stock 3000. Buy stock 3000. Create RDD at the rate of 5% on debtor. Was there any existing RDD? Please check. Was there any existing RDD? था कुछ? No existing RDD, right? So RDD नया ही क्रिएट करना है. 10,000 पे कितना क्रिएट करना है? 5%. That's 500. 0 था, अभी लाइबिलिटी 500 हो गया, बढ़ गया. Is that a gain or a loss? That's to a loss. That's also a loss. Make a provision for outstanding printing bill. कुछ क्लिक हो रहा है? Outstanding bill. Was there any outstanding printing bill on top? Check. No. अभी नया प्रोविजन बना है. What is that provision? Asset or a liability? Tell me. What is it? Outstanding printing bill? Liability. Liability. नया liability आ गया books में. Is that a gain or a loss? Loss. Loss. शुरू में कुछ नहीं था ना, अभी सडनली लाइबिलिटी बढ़ गया. कोई आउटस्टैंडिंग बिल था, देना बाकी है, तो लॉस. रिवाइल डेबिट साइड. पीएनएल में होता तो आप क्या करते? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऐड कर देते. यहाँ पे कुछ है नहीं स्टेशनरी, तो रिवाइल डेबिट साइड. लॉस बढ़ ही रहा है आपका. तो टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल, प्रिंटिंग का पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ गया 6000. और सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल, दैट्स योर लाइबिलिटी. जैसे लास्ट सम में था ना वो कॉम्पेंसेशन,
कभी डैमेजेस, कभी आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर एक्सीडेंट, खत्म, सम इज ओवर, यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉफिट और लॉस। क्या आ रहा है, प्रॉफिट है लॉस है? Loss. लॉस आ रहा है 3700। किसको जाएगा ये लॉस? विल शेयर द लॉस ओनली टू पार्टनर्स, राइट? शेट्गे एंड मयेकर, शेट्गे कैपिटल एंड मयेकर कैपिटल, दो जन को ही जाएगा, बराबर है ना? All three. ऑल थ्री। जाग रहे हो कि सो गए? मुंडी हिला रहे हो? दो को जाएगा, हाँ सर दो को जाएगा। तीन को जाएगा, हाँ सर तीन को जाएगा। अभी चार को जाएगा बोलता, वो भी हाँ बोल दे। ओके, तीन ही पार्टनर को जाने वाला है, तीनों ओल्ड पार्टनर को जाएगा एंटायर प्रॉफिट लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। डिवाइड इट, व्हाट रेशियो यू विल डिवाइड इट? ओल्ड रेशियो, दैट इज 4:3:3। करो डिवाइड। हाउ मच डू यू गेट? क्या हो गया प्रियांश? 14801110. क्या सोच रहा है इतना हमने गंभीर? कॉलेज में मैम बुला रहे थे इसलिए। अच्छा ओके, चालू है क्या लेक्चर साइड में? हाँ तू अभी आज सवेरे नहीं किया, तू सवेरे करता। व्हाट इज द ब्रेकडाउन अमाउंट? व्हाट इज द ब्रेकअप अमाउंट? 148011101110. ओके, बाय पार्टनर कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री पार्टनर कैपिटल में 2 रिवैल 148011101110। शट डाउन द कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला किसको बंद करना है, सोचो और बताओ। Who will you shut down first? राउत भैया को बंद करना है, राइट? संजय राउत को बंद करना है, सबसे पहला राउत जी को बंद करना है। तो what is your difference in Raut? 13,500 is the total, I think, minus 10,650. How are you settling the retiring partner? पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो, दिया होगा। Read the question. How are you settling the retiring partner? Check. How are you settling the retiring partner? Immediately. Overdraft. Immediately pay कर रहे हो। देखो ओडी तो ओडी, लेकिन पे करना है। Have to pay him immediately. Are we transferring it to his loan or paying off ताबड़तोड़? Immediately. Immediately we are paying. So what should you write here? Should you write to Raut's loan or to cash bank or to balance carried down? What you should write? Bank overdraft. नहीं, टू कैश बैंक। बैंक ओडी तो अपने आप वो बैलेंस आएगा ना, तभी ओवरड्राफ्ट बनेगा। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट मत लिखो, उधर देखो क्या दिया है। Raut retired from the business on the above date. It was agreed that the amount due to Raut should be paid off immediately, availing OD facility. Availing OD facility मतलब ये जो आपका कैश बैंक है ना, इसमें बाय बैलेंस आए कि टू बैलेंस आए चलेगा। वो तो वैसे भी नहीं दिया है, तो भी हम लोग अज्यूम करते हैं ओवरड्राफ्ट होगा या नॉर्मल बैलेंस है, जो भी है, डजंट मैटर। बेसिकली यू आर पेइंग हिम, पैसा दे रहे हो, पेंडिंग नहीं रख रहे हो, पैसा दे रहे हो। अच्छा, तो राउत में टू कैश बैंक, तो कैश बैंक में क्या आएगा? बाय राउत कैपिटल 10650 इन राउत। और बाकी दो पार्टनर को बंद करो, उनका तो बैलेंस आने वाला है टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? ये 15,000 है, इसका है 10। What is the balance amount? 9,200 and 5650. 9,200 and 5650. Now bring down your partners capital accounts. Only two partners capital you have, that is Shetge and Mahekar. इसमें खाली एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, कैश बैलेंस का ध्यान रखना है। कैश बैंक बैलेंस में क्या आ रहा है देखना, 14,850। यहां तक क्लियर है सबको? क्या किया मैंने? दो सम्स में लोन में ट्रांसफर हुआ था, ये सम में इमीडिएटली पे ऑफ किया है। ओके, टू कैश बैंक, ताबड़तोड़ भी पेड ऑफ। तो यहाँ पे टू कैश बैंक में बाय राउत कैपिटल। अभी बैलेंस शीट बनानी है तो छापना है फ्रॉम द क्वेश्चन। देखते जाओ, फर्नीचर लिख दिया, स्टॉक लिख दिया,
बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखा है, बिल्स रिसीवेबल लिख दो, दैट्स 18,000। और कैश बैंक, देखो कैश बैंक का बैलेंस कौन सी तरफ आ रहा है, इज इट बाय बैलेंस कैरिड डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन? टू बैलेंस व्हाट डज दैट इंडिकेट? टू बैलेंस सीडी का मतलब क्या है? इज इट ओवरड्राफ्ट हाँ, तो ओवरड्राफ्ट है। बाय बैलेंस सीडी एसेट में जाता है, टू बैलेंस सीडी किधर जाता है? Liability. लायबिलिटी। अब ऑलरेडी कुछ ओवरड्राफ्ट है क्या सम में देखने का? इज देयर एनी ओवरड्राफ्ट? सेम अकाउंट है ना, ओडी ओडी, तो यू कैन ऐड, जैसे क्रेडिटर क्रेडिटर यू कैन ऐड, ओडी ओडी आल्सो यू कैन ऐड। ओके, 10,000. वी आर अज्यूमिंग टू सेपरेट बैंक अकाउंट, बट दोनों में ओडी है, तो ओडी ओडी यू कैन ऐड। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एग्जिस्टिंग कितना था आपका? 10,000, वो लिख दो। ये वाला ओवरड्राफ्ट, नया वाला ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी लिखना है उसमें 8650, टोटल इज 18,650, 18,650। बाय बैलेंस सीडी होता तो एसेट, टू बैलेंस सीडी है तो लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? ओवरड्राफ्ट है, दोनों अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट है। शुरू में नॉर्मल था, अभी ओडी हो गया। मुझे बताओ गुडविल आएगा कि नहीं बैलेंस शीट में? विल यू हैव गुडविल इन द बैलेंस शीट? यस, नो, मे बी? सर मर्जी आए तो लिख देना, हमें तो कॉपी करना है। शुड आई राइट गुडविल इन द बैलेंस शीट? No. भव्या नंदू हाँ बोल रहे हैं, गुडविल आएगी ना बैलेंस शीट में? भव्या तू बोले तो लिख देता हूँ, चल भव्या जो बोलेगा वो मैं लिख दूंगा। सर मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। कंफ्यूज हो गया था, अभी क्या, अभी क्लियर हुआ? अभी गुडविल आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? विच केस वाज दैट? केस 2, केस 2 में राइट ऑफ हो जाती है। ओके, केस 2 और 4 में नहीं दिखेगी, राइट ऑफ हो जाती है। कौन से केस में दिखती है गुडविल बैलेंस शीट में? 1 and 3। इन रिटायरमेंट इट विल बी 1 and 3, इन एडमिशन इट विल बी ओनली 3। जहां पे रेस करते हो लेकिन राइट, आपको कॉमन सेंस वापरना है। इधर बैलेंस है ना, बैलेंस, बैलेंस है तो गुडविल आएगा। गुडविल अकाउंट में बैलेंस है क्या? है ही नहीं, तो कहां से दिखेगा? नो गुडविल इन द बैलेंस शीट। गॉट इट? बैलेंस है तो दिखेगा, बैलेंस नहीं है तो दिखेगा ही नहीं, कॉमन सेंस। सो ये भी हो गया आपका। कैश बैंक नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल लिख दिया। क्रेडिटर्स बाकी है लिखना, क्रेडिटर्स लिख दो। बैंक कोड भी लिख दिया आपने। कितना है क्रेडिटर्स? 8,000। योर बैलेंस शीट शुड टैली, चेक वेदर इट टैलीज। 47,500. दोनों साइड चेक किया, 47,500। हाँ सर. बाकी लोग छाप देंगे अभी सीधा आंसर, और फिर बोलेंगे एग्जाम में टैली नहीं हो रहा है। एग्जाम में भी छापेंगे, एग्जाम में भी छाप के बोल देंगे ऊपर का मसाला मेरे को रॉन्ग मिला है और फाइनल अमाउंट राइट है पब्लिक का। ऊपर का रॉन्ग है, ट्रेडिंग पीएनएल, अभी का टेस्ट का बात कर रहा हूँ। क्या जीनियस लोग है ना एकदम, ऊपर का सब रॉन्ग है, अंतर्यामी भगवान ने बोला आंसर यही तेरा नेट प्रॉफिट होना चाहिए, लिख दे, लिख दिया है ना। और -5 दिया है मैंने, -5 भर भर के काटा है ये टाइम। ऊपर का मसाला अगर रॉन्ग है तो आंसर राइट होना ही नहीं चाहिए। इज्जत से लिखा रहता तो कम कटता, छाप के लिखा है तो ज्यादा कटेगा। चलो, ड्रॉ द जर्नल फॉर दिस सम। आज शाम को प्रैक्टिस है 7:30 to 9। ओके, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का प्रैक्टिस है, कम एट क्लास एंड प्रैक्टिस। एंड बुक्स जिन्होंने सबमिट किया दे कैन कलेक्ट एडमिशन का बुक्स। और जिसका अभी भी बाकी है, 8-10 लोग हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किया है, काइंडली सबमिट टुडे इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट वीक टेस्ट है एडमिशन का, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टेस्ट है नेक्स्ट वीक। मोस्टली थर्सडे होगा, टेस्ट विल बी ऑन थर्सडे आफ्टरनून या इवनिंग। आई जस्ट सेंड यू द टाइम कोऑर्डिनेट करके, बट टेस्ट इज गोइंग टू बी ऑन थर्सडे। ठीक है, चलो ड्रॉ करो फटाफट, जर्नल ड्रॉ करो इसका। व्हाट इज इजी, एडमिशन और रिटायरमेंट? व्हाट डू यू थिंक, क्या लग रहा है? Retirement. सबको रिटायरमेंट, नो वन फील्स एडमिशन, नो वन। बट करना अच्छे से दोनों टॉपिक। ओके, ऑप्शन में आएगा एग्जाम में, दोनों में से एक करना है। होपफुली एडमिशन और रिटायरमेंट आएगा, होपफुली। ओके,
उसके अलावा भी कोई ऑप्शन होता है? हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन है ना, बीओई के ऑप्शन में डिसोल्यूशन, एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट, डेथ के ऑप्शन में ये अपना वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस, और एनपीओ में एनपीओ नो ऑप्शन, एनपीओ फाइनल अकाउंट्स नो ऑप्शन, एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट्स 2 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. कम ऑन किया ड्रॉ, टेल मी द फर्स्ट स्टेप. ओपनिंग बैलेंस का कोई एंट्री होगा कि नहीं होगा? ये टाइम वंदित का लेवल डाउन हो गया, आर्या गांधी का लेवल डाउन हो गया टेस्ट में. आर्या गांधी को क्या हो गया टेस्ट में? व्हाट हैपेंड आर्या? Sir, nothing like what. थोड़ा like बीच में I got confused in the test. बट बहुत खराब किया है, मतलब फाइनल अकाउंट में भी बहुत मिस्टेक्स था और रिजर्व एक्शन में भी बहुत मिस्टेक्स था. 25 और सम 20s में है, 24 25 you have scored out of 50, very less. सर पेपर क्या रहा दो जो पेपर अभी हुआ है, स्टार्ट हुआ है सबका धीरे धीरे. बाय फ्राइडे यू विल गेट, फ्राइडे सब पेपर्स. ओके, 7-8 ही हुआ है सब, अभी धीरे धीरे सबका करेक्शन चालू है. some questions I've already corrected, some questions are left out, so by Friday you will get it. Friday you will get it after 2 days. But not good, हाँ आर्या, practice properly next time अभी एडमिशन के लिए. वंदित से भी 2 टेस्ट में सेंचुरी मारा, तीसरा टेस्ट में अभी 70-80 पे आ गया. ओके, प्रैक्टिस प्रॉपर्ली. प्रसिद्धि, वर्क मोर, वर्क हार्ड. ધ્વનિ ઉદેશી નીડ્સ પ્રેક્ટિસ. રિયા ગાંધી ને કેલ્ક્યુલેશન ના પ્રેક્ટિસ જોઈએ છે, કેલ્ક્યુલેશન ના લફડા છે. बाकी तो ठीक ठाक किया. वरुण बोनाले प्रेजेंटेशन चाहिए इम्प्रूव, हर्षिता का प्रेजेंटेशन चाहिए इम्प्रूव, रियल गंगर बोथ प्रेजेंटेशन एंड वर्किंग हार्ड दोनों चाहिए. ठीक है, चलो आ जाओ जर्नल पे. टेल मी फर्स्ट एंट्री. बैलेंस की कोई एंट्री नहीं है. डू यू हैव रिजर्व्स और लॉसेस? लॉसेस है. व्हाट विल बी योर फर्स्ट एंट्री? कम ऑन. the partner's capital to P&L. शेडगे मयकर टू पीएनएल, सॉरी शेडगे मयकर राउट टू पीएनएल, तीनों को जाएगा. शेडगे मयकर राउट टू पीएनएल, शेडगे कैप मयकर कैप राउट कैप टू पीएनएल. दैट्स 232017401740 and total is how much? 5800. What narration you will write? Shedge Mayekar route to PNL. Shedge Mayekar route to PNL. Old loss divided between the old partner and old ratio. Accumulated loss transferred to old partners in old ratio. Accumulated loss transferred to old partners in old ratio. Accumulated loss transferred to old partners in old ratio. Then tell me the second entry after accumulated loss. What is your second entry? Goodwill to Rawat's capital. Very good. Goodwill to Rawat's capital 3500. Goodwill raised. Narration क्या लिखोगे इसका? Goodwill to Rawat's capital 3500. What narration you will write? Goodwill raised by retiring partner. By नहीं, to the extent of raise old ही कर रहा है. तो goodwill retiring partner share of goodwill raised. Retiring partner share of goodwill raised. सर सिर्फ गुडविल रेस्ट लिखा तो इसको चलेगा. शेयर ऑफ गुडविल रेस्ट खाली इतना. गुडविल रेस्ट थर्ड केस में होता है. शेयर ऑफ गुडविल रेस्ट लिखा तो भी चलेगा. शेयर ऑफ गुडविल रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेस्ट. शेयर ऑफ गुडविल रेस्ट या रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेस्ट. व्हाट्स योर थर्ड एंट्री? Shedge cap Mayekar cap to Goodwill. शेडगे
Shedge cap, Mayekar cap to goodwill. Shedge cap, Mayekar cap to goodwill. That's your third entry. ये रहा. Shedge cap, Mayekar cap to goodwill. क्या होगा narration? Shedge cap, Mayekar cap to goodwill. 2,000, 1,500 and 3,500. What will be the narration? Goodwill written off. Being share of goodwill written off. या goodwill written off तो भी चलेगा. Share of goodwill written off या goodwill written off. Share of goodwill written off या goodwill written off. Sir, why can't we write the third entry as second and second as third? You can do that. Order ऊपर नीचे हो गया तो भी चलेगा. Okay, all the entries are happening on the same day ना. So order ऊपर नीचे हुआ तो not a problem. But हो सके तो पहले second लिखो क्योंकि पहले goodwill asset बढ़ा और फिर write off किया, depreciate किया. पहले asset बढ़ता है ना फिर depreciate होता है. पहले depreciate होके फिर बढ़ाना थोड़ा illogical है. But अगर order हो गलत गया order ऊपर नीचे तो don't worry. Okay. चलेगा. It's not wrong. Marks मिलेगा. Entries सब होना चाहिए. Order ऊपर नीचे हो गया don't worry. All are happening on the same day. What is the next step after goodwill? Sir, reval to furniture to RDD To outstanding printing. to outstanding. Reval to furniture to RDD to outstanding printing. 200, 500, 6,000 and total is 6,700. What will be your narration? Being furniture, RDD and outstanding printing revalue. In furniture, RDD, outstanding printing revalue. All of you wrote fourth entry. Being furniture, RDD, outstanding printing bill revalue. What's your fifth entry? Stock to reval. Stock to reval being stock revalued. Stock to reval being stock revalued. What's your sixth entry? क्या होगा आपका sixth entry? Shedge cap, Mayekar cap, Raut cap to reval. Shedge, Mayekar, Raut cap to reval. Very good. 1480, 1110, 1110 and total is 3,700. 1480, 1110, 1110, 3,700. Shedge, Mayekar, Raut to reval. Shedge, Mayekar, Raut to reval. Go in the order of ledger तो easy पड़ेगा आपको. कुछ miss out नहीं होगा. एक्स्ट्रा एंट्रीज भी होगा. एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर, एसेट सोल्ड ऑफ, लायबिलिटी पेड ऑफ, वो भी यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे तो नहीं है. क्या होगा नरेशन इसका? व्हाट नरेशन विल राइट? बीइंग Loss on reval transfer to partners capital. loss on reval transfer to partners capital. Very good. Loss on reval transfer to partners capital. Loss on reval transfer to partners capital. Perfect. Okay. Then लास्ट एंट्री जो हमेशा रिटायरमेंट में आएगी, हमेशा 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 आने ही वाली है ये एंट्री रिटायरमेंट. व्हाट इज दैट लास्ट? Route capital to cash bank to bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैलेंस है. बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है. बैलेंस को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. ओके, so it will be simply Raut's capital to cash bank. Like buy balance is normal balance and to balance is OD. OD का कोई सेपरेट एंट्री नहीं है. Raut capital to cash bank account. Raut capital to cash bank. लोन है तो Raut capital to Raut's loan और cash bank है तो Raut capital to cash bank. So Raut capital to cash bank, that would be 10650. Is that right? 10650. Raut capital to cash bank 10650. And what narration you will write? Being
Retiring partner Hiring paid in partner paid in cash. Being balanced in retiring partner paid off in cash. Yeah, retiring partner capital paid off. Being retiring partner capital paid off. Yeah, Raut's capital paid off in cash. वो भी लिख सकते हो. Being retiring partner paid off in cash. Retiring partner capital paid off in cash. Yeah, being Raut's capital paid off in cash. Being Raut's capital paid off in cash. Okay. So all for the day. No written homework. Again, revise for admission test. Solve and write. Practice at least 5 to 6 sums. Come at class and practice. 7:30 to 9 at practice है. And book submission. जिसका बाकी है, come and submit today. जिसका लेना वो collect कर लेना. मैं फाइनल अकाउंट का बुक अभी तक पढ़ा ही नहीं है क्या बुक का? ये साथ फाइनल अकाउंट का बुक पढ़ा हुआ है क्लास में. What nonsense is going on? मेरे को ही पढ़ाई करने का लगता है, मेरे को बोर्ड देने का है, तुमको खाली घर पे बैठ के टेस्ट मैच देखने का है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. ओके, so collect it without fail and we meet on Friday with difficult sums. Good doubt.